السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں عثمان چوہدری۔ اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہوں گی ہیڈ لائنز، لیکن ہیڈ لائن سے پہلے ایک بریک۔ درست ہر وقت بر وقت مہینے پہلے 4 ایکڑ پہ قبضہ ہوا ہے۔ ہمارے پلاٹ ہمیں واپس دلوائے جائیں۔ کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ ماں جیسی ریاست کھڑی ہے مظلوم کے ساتھ، قانون کی بالادستی کے مثالی دور کا آغاز، مظلوموں بے بسوں کے دلوں کی آواز، بن چکی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر قیادت قبضہ مافیا کباب ہمیشہ کے لیے بند۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری۔ طاقتور بھی اب ہوگا قانون کا پابند، فوری انصاف سے حقدار کا سر ہوگا بلند۔ ضلعی سطح پر ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیوں کا قیام، اب قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں لازمی قرار۔ فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے خصوصی ٹریبیونلز کا قیام، خصوصی ٹریبیونلز بھی اپیل کا فیصلہ 90 روز کے اندر کرنے کے پابند۔ فیصلے کے بعد 24 گھنٹوں میں قبضہ مافیا سے جائیداد واگزار کروائی جائے گی۔ شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ریکارڈ، سوشل میڈیا لائیو سٹریمنگ اور زمین واگزاری کے لیے پیرا فورس کی تجاویز زیر غور۔ پیرا فورس بھیجی ہے، سانو قبضہ مل گیا، مریم نواز کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اسی اپلیکیشن دیتی تو اج الحمدللہ انہوں نے وہ عمل درآمد رات تک قبضہ سب مل گیا۔ اسی الحمدللہ اس گورنمنٹ کو بہت خوش ہے۔ مجھے کہیں بھی قبضہ مافیا نظر نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سچ کر دکھایا ایک اور خواب، ریاستی ریٹ اور عوامی حق ملکیت کا تحفظ پوری قوت کے ساتھ۔ حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسی الخلیفہ کے درمیان منامہ میں اہم ملاقات، سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی، تکنیکی تربیت، لاجسٹکس، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا پائیدار دوستی اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں کنگ حمد یونیورسٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی بحرین میں پاکستانیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بحرین کا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف بحرین دیا گیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسی الخلیفہ نے اعزاز وزیر اعظم کو دیا۔ آرڈر آف بحرین عالمی سربراہوں کو دیا جانے والا بحرین کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اعظم کا تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ بحرین کے سرمایہ کاروں کو SIFC کے ذریعے غذائی تحفظ، IT، کانکنی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ بحرین کے بادشاہ کی جانب سے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کی منامہ میں ملاقات، اقتصادی تعاون اور تجارت کے فروغ سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، دفاع، سیکیورٹی، تربیت، سائبر سیکیورٹی اور دفاعی پیداوار اور معلومات کے تبادلے میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ اعلیٰ تعلیم، تکنیکی تربیت اور ڈیجیٹل گورننس میں مزید تعاون کا خیر مقدم۔ دونوں رہنماؤں کی غزہ میں امن و استحکام سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں منامہ میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔
कसरुल कजीबिया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वली अहद और बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। मनामा आमद पर बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, बिलाल अज़हर कयानी और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दौरे से दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और शराकत दारी की नई राहें खुलेंगी। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसको लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनसे भी पूरा हिसाब लेना चाहिए। पीटीआई दौर में सिर्फ तबाही आई, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। हमने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान को इखलाकी और माशरती दिवालियापन से बचाया। आज मुल्क में मेरिट पर काम हो रहा है, तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी हैं, नौजवानों को लैपटॉप मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं, अमन अमान की हालत बेहतर है। 2017 में तरक्की का रास्ता न रोका जाता तो आज IMF की फिक्र न होती। मोहम्मद नवाज शरीफ। फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी के बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। अवाम ने नफरत, गालम गलोच और इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में झूठ, बदतमीजी और फितने की सियासत को शिकस्त हुई। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। फितना, फसाद, जलाओ घिराव के माहौल में कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान असेंबली से खिताब। तमाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे वो ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम नारों और अमली इकदामात में फर्क जान चुके। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। खिदमत की सियासत को मिटाया नहीं जा सकता। 3 दफा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। नवाज शरीफ की 40 साल की खिदमत निकाल दी जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का नौ मुंतखब अरकान असेंबली से खिताब। आम इंसान के लिए काम हो रहा है और लोगों के लिए हर रोज प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है। लोगों की बेहतरीन उनको सवारी के लिए काम हो रहा है। सुथरा पंजाब आप देखते हैं तो लोग ये देख रहे हैं, इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। दूसरों को चोर डाकू कहने की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज है। हम मुल्क को फलता फूलता और तरक्की करता देखना चाहते हैं। अवाम की खिदमत करना हमने विरासत में सीखा। मुल्क की तरक्की की कुंजी मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून ने मुश्किलात का बहादुरी से सामना किया, कभी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। PTI ने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया, मुखालफीन को जेलों में डाला। PTI झूठे बयानिए से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल डॉक्टर अली लारेजानी की मुलाकात। तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए ताउन और ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर। अली लारेजानी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकतदारी को नागुज़ीर करार दिया। कौमी वहदत हमारी सबसे बड़ी ताकत, दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की सरहदी और इलाकाई सालबियत पर कोई समझौता नहीं होगा। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए हम अहम कौमी कोशिशें नागुज़ीर हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। मुसल्लह अफवाज और इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पेशा वराना सलाहियत पर एतमाद का इजहार। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल मुकाबले की निशानदही भी की। शुरका को स्मगलिंग, मनशियात, मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरों की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कौमी दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। शोहदा और उनके अहल खाना को खराज अकीदत पेश किया। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। मुल्की दिफा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर, मुसल्लह अफवाज हर दम तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सुबुक दोष होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सऊदी अरब के शहर तबूक में पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मश्क अल-बतार 2 में इख्तिताम पसीर। मश्कें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहीं। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते और सऊदी फौज की कॉम्बैट टीम्स ने हिस्सा लिया। पेशा वराना सलाहियत, ऑपरेशनल महारत और बाहमी हम आहंगी के शानदार मयार का मुजाहरा किया। अल-बतार 2 मुश्तरका मश्क का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में मुश्तरका महारत बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। छह दिहाइयों से शानदार रिवायात का अमीन। पाकिस्तान टेलीविजन की आज 61वीं सालगिरह। हर दौर में कौम का तर्जुमान। PTV ने कौमी तशख्खुस और बयानिए को उजागर किया। रियासती इदारे ने नामवर अदाकार, गुलकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन पैदा किए। PTV आला रिवायात और जिद्दत का इम्तिजाज। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्की शनाख्त और मुस्बत तशख्खुस दुनिया भर में रोशनास कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ना कोई लीडर, ना कोई चीज पाकिस्तान से बड़ी है। तमाम ओहदे, तमाम इज्जत, वकार, तमाम चीजें, ये तमाम बहाने पाकिस्तान से हैं। ऑलवेज कीप पाकिस्तान फर्स्ट। और हम बैरूनी महाज पे इसलिए इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे थे क्योंकि घर वाला महाज मजबूत हाथों में था। PTV ने हमेशा अपनी रिवायात और अक़दार को मलहूज़ खातिर रखा। अपने ड्रामों के जरिए अपनी सकाफत को उजागर किया। मार्का हक के दौरान PTV न्यूज़ ने बेहतरीन बयानियों को फ़रोग़ दिया। दुनिया के सामने मजबूत और हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTV मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान में गुफ्तगू। PTV की 61वीं सालगिरह का केक भी काटा।
سیکرٹری اطلاعات اشفاق احمد خلیل، پی ٹی وی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اسلام آباد میں پہلے عالمی مقابلہ حسن کرت کا سیمی فائنل اور فائنل کل ہوگا۔ افغانستان، مصر، مراکش، ترکی، ایران، ملائیشیا، عراق، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے قاری حضرات ٹاپ 10 میں پہنچ گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 40 سے زائد رکن ممالک کے قاری اور حفاظ کرام نے مقابلہ حسن کرت میں حصہ لیا۔ ہمارے جوان زخمی ہوئے اور جن کو انہوں نے اغوا بھی کہیں کو اغوا کر کے ان کو بھی جو ہے انہوں نے مارا ہے۔ میں نے خود دیکھا ڈنڈوں میں کیلے انہوں نے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اتنی کراس انہوں نے فائرنگ پولیس پہ کی کہ جیسے کوئی جنگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے بالکل نہ میری بزرگی کا لحاظ کیا، نہ میری مطلب ہے کہ لینگویج کا لحاظ کیا، پتہ نہیں کہ کیسے لوگ تھے۔ 24 سے 26 نومبر 2024 کے احتجاج میں پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ظلم کی شرمناک داستان پولیس اہلکاروں کی زبان۔ احتجاج میں پی ٹی آئی شرپسندوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا۔ مظاہرین کے پاس کیل لگے ڈنڈے، آتشی اسلحہ اور غلیلیں بھی تھیں۔ بیلاروس کے صدر کو روکنے کے لیے شرپسند عناصر کا مقصد ایکسپریس وے کو بلاک کرنا تھا۔ شرپسندوں کا ارادہ تھا کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کو یرغمال بنائیں اور ان کے گھروں میں گھس جائیں۔ احتجاج کے لیے افغانیوں کو پیسے دے کر لایا گیا تھا جنہیں اردو بھی نہیں آتی تھی۔ ہمارے جذبے بلند ہیں، اگر حکم ملا تو شرپسندوں کو اسلام آباد میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد پولیس اہلکار۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام، سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان، سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج جسٹس سردار شمیم خان، چیف کورٹ کے چیف جج جسٹس علی بیگ، ججز اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران کی شرکت۔ افغان طالبان کی نااہلی سے افغان عوام غربت، بھوک اور افلاس سے شدید انسانی بحران کا شکار۔ افغانستان میں شہری استحصال شدید انسانی المیہ کی المناک مثال بن گیا۔ افغانستان میں بچے ننگے پاؤں اور غیر موزوں کپڑوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 کروڑ افغان شہری شدید مشکلات کے باعث انسانی امداد کے منتظر ہیں۔ آمو ٹی وی کی چشم کشا رپورٹ۔ افغان شہریوں کی تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولیات سے محرومی، افغان طالبان رجیم کی بدعنوانی کی دلیل۔ دبئی ایئر شو حادثہ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ آرمینیا نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کے 12 بھارتی لڑاکا طیاروں تیجس کی خریداری کا معاہدہ ختم کر دیا۔ آرمینیا کے فیصلے سے اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز کو بھی بھاری نقصان۔ تیجس میں استعمال ہونے والے جدید آلات اسرائیل میں تیار ہوتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ بھارت کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی نے پورے خطے کا امن داؤ پر لگا رکھا ہے۔ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور ترقی ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر کا بہترین حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پوشیدہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا آغاز۔ ہیوی ویٹ مقابلے میں پاکستان کے عاصم زمان نے نیدرلینڈز کے وہاب احمد کو ہرا دیا۔ خواتین کی کیٹیگری میں جرمنی کی زائنہ نصر کی تھائی لینڈ کی کانو کوان کے خلاف کامیابی۔ فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز مد مقابل، 6 پاکستانی اور 38 غیر ملکی باکسرز ایکشن میں۔ مقابلے دیکھے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ Looking forward to some great fights, some great events, and glad to hear that this is not the end, this is the start. So I'm looking forward to it. I'm just speaking on behalf of Falcon Promotions. I just want to thank the Pakistan Army, the government of Punjab for backing us, for making this event happen. I'm very excited and I'm ready to go, and I'll show my skills on 29th of November.
इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शरीक बॉक्सर्स की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमें एक अच्छे इवेंट का इंतजार था, पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हो रही है। बरतानवी बॉक्सर क्रिस ग्लोवर। पाकिस्तान एक अच्छे इवेंट की मेजबानी कर रहा है। खेल का मकसद लोगों में मोहब्बत पैदा करना है। अमेरिकी बॉक्सर रॉय जोन्स जूनियर। मोहम्मद वसीम बेहतरीन बॉक्सर हैं, उनकी फुर्ती बहुत मुनफरिद है। डीन मॉन कोच मोहम्मद वसीम। दुनिया के हर रंग में पाकिस्तान का परचम बुलंद करना मेरा आज़म है। इवेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा करूंगा। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने भारतीय सूरमाओं को उनकी सरजमीन में धूल चटा दी। हेड कोच गौतम गंभीर का गरूर खाक में मिला दिया। भारत को गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त का सामना। गुवाहाटी टेस्ट में भारत 408 रन के भारी मार्जिन से चारों शाने चित। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को उसकी होम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। इससे कबल न्यूजीलैंड ने भी भारत को उसकी सरजमीन पर क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद में एटीपी चैलेंजर कप पाकिस्तान के एहसाम उल हक और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में एहसाम और मुजम्मिल ने तिमोफी इद्रीस पॉस्को और इवान ग्रेत्स्की को 6-7, 7-5 और 10-6 से हराया। और इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के हमजा खान, नूर जमान और नासिर इकबाल सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल्स में मिस्र के करीम अल हमामी, यासीन चौहदी और मुस्तफा अल सतरी को शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नाजरीन पहले आपको बताएंगे कि आपके और हमारे साथ को 61 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया और कारकुनान की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और सामीन को पीटीवी की 61वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे बहरीन की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से होने वाली मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह ने ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया, जो बहरीन का आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एहसास है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के साथ बहरीन की देरीना खैरसगाली को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन, रवादारी और बकाए बाहमी को फरोग देने में बहरीन की क़यादत को सराहा। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि बहरीन को ये एजाज हासिल है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह बहरीन के वकील रहे हैं। बहरीन के बादशाह
बादशाह ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया, जो बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज है। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में किंग हमद यूनिवर्सिटी फॉर नर्सिंग एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज के क़याम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बहरीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इक्तसादी ताल्लुकात पर बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम बहरीन के साथ तिजारत और सरमायाकारी को वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान और GCC आजाद तिजारती मुआहिदा हतमी मराहिल में है। इस मुआहिदे से दो तरफा तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। वजीर आजम ने बहरीन के सरमायाकारों को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, तामीरात, कानकनी, सयाहत और सेहत के शोबों में सरमायाकारी के मजीद मौक़े तलाश करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने बहरीन में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और मेहमान नवाजी की भी तारीफ की और पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी पर बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना दिफाई शराकत दारी की अहमियत का अयादा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि गजा के अवाम के लिए अमन व इस्तेहकाम का क़याम इंतहाई खुशाइंद है। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब बहरीन की दारुल हुकूमत मनामा के कसर अल ग़ज़ीमा में हुई। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मनामा से हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन दोनों मुल्कों के दरीना खुशगवार ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मनामा के कसरुल क़देबिया में हुई। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कसरुल क़देबिया में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आइंदा 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात को उजागर करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा 3 साल में दो तरफ़ा तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाएंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, तामीरात, कानकनी और मादनियात, सेहत, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत में सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कराची, ग्वादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहरीन की हमायत को तस्लीम किया और मज़ीद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तफाक किया कि गजा के अवाम के लिए अमन व इस्तेहकाम का क़याम इंतहाई खुशाइंद है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, नायब वज़ीर-ए-आज़म खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद और आला हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा सईद मोहसिन रज़ा नकवी, अताउल्लाह तारड़, बिलाल अज़हर कियानी और आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीयत मिलेगी और शराकत दारी की नई राहें खुलेंगी। बहरीन पाकिस्तान दोस्ती का आकाश वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा नताइज पर मबनी तज़वीराती शराकत दारी को भी फ़रोग़ देगा। शाहरुख शफ़ी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मनामा, बहरीन।
یہاں پر ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں عوام نے جھوٹ، گالم گلوچ اور بد تہذیبی کے بیانیے کو شکست دے کر تعمیری سیاست، ترقی اور خوشحالی پر مہر لگائی۔ لاہور میں 9 منتخب ارکان اسمبلی سے ان کے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ لاہور میں 9 منتخب اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن سازشوں کے ذریعے قومی خوشحالی کے اس سفر کو روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں معیشت سمیت ہر شعبہ تباہی سے دوچار ہوا۔ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں۔ فتنہ، فساد، الزام تراشی، گرہ بانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا ہے وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ہر دور حکومت میں ملک نے ترقی کی شاندار منازل طے کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی اور معیشت کو استحکام حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت نے ہر شعبے میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے، اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ پنجاب میں کم وسیلہ گھرانوں کو اپنی چھت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ لاکھوں مستحق افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جا رہا ہے، اور ہر ضلع میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ضمنی انتخابات میں شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ڈیجیٹل ٹچ کے ذریعے پاکستان کے منفرد پروگرام اپنی زمین اپنا گھر کا باضابطہ آغاز کیا۔ محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اٹک کی خاتون رخسانہ بی بی کو پلاٹ نکلنے پر فون کر کے مبارکباد دی۔ تحصیل منڈی یزمان کی میرو مائی کو بھی فون پر مبارکباد دی گئی، جس کے خامد رمیش لال نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم کھوکھلے نعروں کی بجائے حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ 3 مرلہ پلاٹ مفت حاصل کرنے والے 15 لاکھ کا قرض بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے اپنی زمین اپنا گھر منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پنجاب کے 19 اضلاع کی 23 ہاؤسنگ اسکیموں میں 2000 افراد کو رہائشی پلاٹ ملے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت اب تک 1,18,000 لوگ 145 ارب روپے قرض بھی حاصل کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی عوامی خدمت اور تعمیری سیاست کا نتیجہ ہے۔ لاہور میں 9 منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عوام کھوکھلے نعروں اور عملی اقدامات میں فرق جان گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد۔ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے اراکین اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون جمہوری عمل کے تسلسل اور مثبت سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ مخالفین نے اپنے دور حکومت میں جھوٹے الزامات اور انتقامی رویوں کے ذریعے نون لیگ کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج ان کی اپنی جماعت ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ عوام تبدیلی، حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائیکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو، عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم نے وراثت میں گالی دینی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بدتمیزی کرنی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بد تہذیبی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں خواتین کو آوازیں کسنا نہیں سیکھا، ہم نے وراثت میں انتقام لینا نہیں سیکھا، ہمیں وراثت میں نااہلی اور نالائکی نہیں ملی، ہمیں وراثت میں محنت ملی، ہمیں وراثت میں عزت اور احترام کرنا سکھایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے بدترین سازشوں کا سامنا کرنے کے باوجود مثبت سیاست کی اور عوامی خدمت کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر آج ڈیفالٹ کی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ کوئی ذکر ہے۔ آج صرف یہ ذکر ہے کہ کل سٹاک مارکیٹ نے کون سا ریکارڈ توڑا تھا اور آج کون سا ریکارڈ بنا رہی ہے۔ مہنگائی 40% سے اگر 4% پہ آئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں اس کی بھی مثال نہ ملتی ہو۔ ایک عام انسان کے لیے کام ہو رہا ہے اور لوگوں کے لیے
हर रोज प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, लोगों की बेहतरीन उनको सवारी के लिए काम हो रहा है। सुथरा पंजाब आप देखते हैं तो लोग ये देख रहे हैं, इसीलिए माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट मिला है। इस फाउंडेशन पे नवाज शरीफ साहब की 40 साल की सियासत खड़ी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने नौमुंतखब अराकीन को हिदायत की कि वो अपने हलकों में अवामी मसाइल के हल के लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर पार्टी कारकुन और ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर से ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा करते हुए दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। ISPR के मुताबिक अली लारिजानी ने इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकतदारी को नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती में पिन्हा है, मिलकर हम अपने दुश्मनों के मकरू अज़ाइम को शिकस्त देंगे। GHQ रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानियों की सालमियत, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के हालात में पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी कोशिशें और इदारा जाती हम आहंगी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और ये अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मारका हक़ के दौरान मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना मयार, अज़्म और लगन ने पाकिस्तान के आलमी वक़ार में बेहद इजाफा किया है। बर्री फ़ौज के सरबराह ने बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल मुकाबलाबाजी, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड ख़तरात से तश्कील पाने वाले इलाकाई माहौल के हवाले से भी शुरका को तफसील से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैरूनी हिमायत याफ्ता, अस्करियत पसंदी और इत्तलात की जंग जैसे पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला पेशावराना मयार के मुताबिक अपने अज़्म का शानदार मुज़ाहरा कर रहे हैं। सवाल जवाब सेशन में शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुल्क गिर इक़दाम समेत स्मगलिंग, मनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील से आगाह किया गया, जबकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर कंट्रोल इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में खुसूसी अलविदाई तकरीब हुई, जिसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को 40 साल फौजी खिदमात मुकम्मल करने पर शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने अलविदाई खिताब में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने फ़राइज़, लगन, पेशा वराना सलाहियत और बेलौस जज्बे के साथ सर अंजाम दिए। उन्होंने मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफ़वाज की बेलौस कुर्बानियों का जिक्र करते हुए शोहदा और उनके खानदानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा ही कौमी सलामती का लाजमी सतून है। उन्होंने कहा कि कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और हमारे बहादुर अफसर और जवान इसे मजीद मजबूत बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इससे पहले ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्की वफ़कार और कौमी मफाद सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान टेलीविजन रिवायतों का अमीन है, मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हम दुरुस्त समत पर गामज़न हैं। मज़ीद बताएंगी मरियम मलिक। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क की नजरियाती सरहदों और रवायात का अमीन, कौमी इदारे का 61 वर्ष पर मुहित सफर, पेशा वराना सहाफत का रोशन बाबर कौमी यकजहती की अलामत। PTV की 61वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली खसूसी तकरीब में वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने केक काटा। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात इशफाक अहमद खलील, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अमरीन जान, PTV की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि ब्रॉडकास्ट मीडिया में न्यूज, इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के शोबों में पाकिस्तान टेलीविजन बानी है। PTV ने ड्रामों के जरिए सकाफत को उजागर किया। इस कौमी इदारे को नए तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। At this point in time 61st birthday, तो इस पे आपको भी बड़ी मुबारक और PTV के तमाम देखने वालों को और PTV की तमाम मैनेजमेंट को। ये एक लेगेसी है, ये एक हिस्ट्री है और इससे हमारी एग्जिस्टेंस भी वाबस्ता है, क्योंकि इसने हमें एक नई
शक्ल दी, एक नया रंग दिया, नए तौर तरीके दिए। अब इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, फ्यूचर में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लेके जाना, ये एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि वी नीड टू कम अप टू दैट। वी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द लेगेसी वी लीव। हमने अभी पीटीवी डिजिटल शुरू किया है, हमने होम के पुराने आर्काइव लगाना शुरू किए हैं। वो सिर्फ एक रिमाइंडर है एक ग्लोरियस पास्ट का। पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट पे एक बिल्कुल फ्रेश यंग न्यू लुक है और उसके अंदर हमारी स्टोरीज अब दुनिया में कोट हो रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मार्का हक के दौरान पीटीवी ने बेहतरीन अंदाज में कौमी बयानिए को उजागर करते हुए मजबूत और हकायक पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ना कोई लीडर, ना कोई चीज पाकिस्तान से बड़ी है। तमाम ओहदे, तमाम इज्जत वकार, तमाम चीजें, ये तमाम बहारें पाकिस्तान से हैं। ऑलवेज कीप पाकिस्तान फर्स्ट। और इस जंग में हमने देखा कि हमारे यंगस्टर्स ने किया भी। नैरेटिव वॉर अल्हम्दुलिल्लाह जीती, डिप्लोमेटिक वॉर जीती, मिलिट्री वॉर में हैंड्स डाउन जीती, 7 जहाज गिराए। और हम बैरूनी महाज पे इसलिए इत्मीनान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहे थे क्योंकि घर वाला महाज मजबूत हाथों में था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीवी ड्रामों के आज भी जहनों पर नकूश मौजूद हैं। पाकिस्तान आइडल के जरिए नौजवानों को टैलेंट का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी इदारे को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पीटीवी की 61वीं सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद सेंटर में भी केक काटा गया। तकरीब का अहवाल बताएंगी फरहाना खान अपनी रिपोर्ट में। इस साल जो मारिका हक के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न को दुनिया में मकाम मिला, जिस तरह भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और अफवाज पाकिस्तान ने डट कर उनका मुकाबला किया, दुनिया में जहां पेशावराना अफवाज पाकिस्तान की महारतों का, सलाहियतों का एतराफ़ हुआ, वहीं पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर लम्हा बलम्हा हक़ाइक़ से बाखबर रखने पर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम को पीटीवी की स्क्रीन को दुनिया भर में पजीराई मिली। हर साल हम पीटीवी की सालगिरह मनाते हैं और बहुत खुश होते हैं, मगर आपको कुछ फ़र्क तो महसूस हो रहा होगा इस वक्त। इस दफ़ा तो ज़्यादा खुश है ना जी। एक तो हमने जंग जीती है और आपको पता है कि 61 साल का हो गया माशाल्लाह से पीटीवी है तो हम लोग हैं। पीटीवी का ये तोरा इम्तियाज़ रहा है कि इसने हमेशा जो हकीकी और सही खबर जो है और मुल्क का जो सही तशख़्ख़ुस है, सही तस्वीर है, वो पेश की है। पीटीवी न्यूज़ की जो एक अहमियत है इस वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये खुशी बिल्कुल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्का हक में जिस तरह पाकिस्तान टीवी, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी करंट अफेयर्स सब ने जिस तरह मिलजुल के दिन रात काम किया, उसका डेफिनेटली जो ये टीम है इसको क्रेडिट जाता है। जो कैपेबिलिटी थी फर्स्ट टू स्ट्राइक की, जिस पे उसको काउंटर करना प्रोपेगेंडा को, उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया पीटीवी ने। हम अपने जो ताबनाक माजी है इस पर तो फ़ख्र करते हैं, लेकिन आज पूरी टीम इस अज़्म का इयादा भी करती है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी कामयाबी का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न की 61वीं सालगिरह के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान। पाकिस्तान टेलीविजन की 61वीं सालगिरह के हवाले से गिलगित में सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर वफाकी वजीर ने पीटीवी की मैनेजमेंट को मुबारकबाद देते हुए तवक्को जाहिर की कि पीटीवी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए भरपूर अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहेगा। पीटीवी ने हमेशा मुल्की इशूज, नेशनल इशूज को हाईलाइट किया है और हक और सच आवाम के सामने रख दिया है। हमारी ख्वाहिशात पीटीवी के साथ कि ये इसी तरह कायम दायम रहे, ये कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का असली इमेज बता दे और उसको हाईलाइट करे। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पीटीवी ने गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फरोग और इलाकाई ज़बानों के तरवीज में अहम किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने जीबी में इंतखाबात की भरपूर कवरेज पर पीटीवी को खराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात अरबाब खिजर हयात ने अपने बयान में कहा कि पीटीवी हमारे कौमी मौक़िफ़, सकाफ़ती वर्से और जिम्मेदार सहाफ़त की एक मुस्तनद आवाज़ है जिसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत को अपना फरीज़ा समझा। पीटीवी एकेडमी में पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह के मौके पर तकरीब हुई जिसमें पीटीवी ड्रामा एंड फिल्म एकेडमी, पीटीवी स्पोर्ट्स और कश्मीर सेल के तमाम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। डायरेक्टर प्रोग्राम सैफुद्दीन ने कंट्रोलर प्रोडक्शन ट्रेनिंग एकेडमी जायद हुसैन जतोई के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। शुरका ने पीटीवी की तवील पेशावराना रवायत को सराहा और इदारे की तरक्की के अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور سے ہوا تھا۔ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے آج پی ٹی وی نہ صرف اپنی نشریات عالمی سطح پر نشر کر رہا ہے بلکہ اس کی چینلز میں بھی تنوع آ چکا ہے۔ پی ٹی وی کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے ڈاکٹر عمر ملک کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن سروس کے آغاز کا فیصلہ 1963 میں کیا گیا جب حکومت پاکستان نے جاپان کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت 2 پائلٹ ٹیلی ویژن سٹیشنز قائم کیے گئے۔ ان میں سے لاہور کا سٹیشن 26 نومبر 1964 کو فعال ہوا جس نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی دنیا کا آغاز کیا۔ پی ٹی وی کی ابتدائی نشریات محدود تھیں لیکن جلد ہی اس نے ترقی کی راہ پہ قدم رکھا۔ 1965 میں ٹیلی ویژن پروموٹرز لمیٹڈ کے نام سے ایک نجی کمپنی قائم کی گئی جسے 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پی ٹی وی نے اپنے سینٹرز کراچی، اسلام آباد میں قائم کیے اور 1974 میں پشاور اور کوئٹہ میں بھی سینٹرز کا قیام عمل میں آیا۔ وقت کے ساتھ پی ٹی وی نے اپنی ٹیکنالوجی میں بھی بہتری لائی۔ 1980 کے دہائی کے آخر میں پی ٹی وی نے رنگین نشریات کا آغاز کیا جو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے بعد پی ٹی وی نے مختلف اقسام کے پروگرامز جن میں خبریں، ڈرامے، کھیل اور تفریحی پروگرامز تھے نشر کیے جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ آج پی ٹی وی کا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی سپورٹس، پی ٹی وی گلوبل، پی ٹی وی بولان، پی ٹی وی نیشنل، پی ٹی وی پارلیمنٹ اور اے جے کے جیسے چینلز پاکستانی ثقافت، سیاست اور تفریح کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں پہلی بار صحت کے شعبے میں تاخیری کلچر ختم، کام ہوگا اور مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مری، ساہیوال اور سرگودا کارڈیالوجی سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کے 57 اسپیشلائزڈ اسپتالوں کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ ان اسپتالوں میں لاکھوں مریض سرجری اور اربوں روپے کے مفت ادویات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کارڈیالوجی مشینری کی تاخیر پر سخت ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسپتال کی تعمیر کے ساتھ ساتھ تمام مشینری اور مکمل آلات کی انسٹالیشن لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سرگودا ڈویژن میں دل کے مریضوں کے لیے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اپریل تک اور نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر مری کو وسط فروری تک مکمل طور پر فعال کرنے کی ڈیڈ لائن دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 1496 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,63,188 پر بند ہوا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سمیر عباس کی رپورٹ میں۔ موجودہ حکومت کی اقتصادی پالیسیز کی وجہ سے ملک کے معاشی اشاریے نہ صرف مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں بلکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک پاکستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے معاہدے کر رہے ہیں۔ حکومت کی ان پالیسیز پر سرمایہ کار اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان پالیسیز کا تسلسل جاری رہا تو اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ابھی اپرچونیٹیز مارکیٹ میں بہت ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جب اس ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے تو نئے انویسٹر کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ بحرین ہے اس میں بھی امید ہے کہ جس طرح یو اے ای اور دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو بحرین سے بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھی خبر آ سکتی ہے۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 559 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا جس میں 136 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 290 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ 133 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ آج مارکیٹ میں 30 ارب 91 کروڑ روپے کی لاگت کے 3,19,000 سودے ہوئے جن میں 63 کروڑ سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ میں آئل اینڈ گیس اور فارماسیوٹیکلز کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھی گئی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و ترقی ممکن نہیں اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کا بہترین حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پوشیدہ ہے۔ بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جموں کشمیر پر طاقت کے بل پر قبضہ جما رکھا ہے اور وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہٹ درمی اور غیر حقیقت پسندانہ طرز عمل نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ قابض انتظامیہ نے ضلع ادھم پور میں ایک اور کشمیری مسلمان طارق حسین کی جائیداد ضبط کر لی۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ میں مقامی مسلم ادارے فلاح الدارین کے خلاف کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔
पुलिस ने इदारे पर छापा मारकर अमले को भी सख्त हिरासा किया। डिग्री कॉलेज बराए खवातीन कठुआ की एक तालिबा सुमेरा ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान उनके घर में घुसकर उन्हें सख्त हिरासा किया और इंतहाई नाजेबा जुमले इस्तेमाल किए। तालिबा ने कहा कि इस वाक़े के बाद वो और उसके वालिदैन खौफजदा हैं और ख़ुद को इंतहाई गैर महफूज समझते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जम्मू में मारूफ अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर SIA के छापे की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मकबूजा इलाके में आज़ादी सहाफ़त पर कतगन की मोदी हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा करार दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मोग पड़ने की तवक्को है। आइंदा चंद रोज़ के दौरान शिमाली इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। नाजरीन, खेल में खुशामदीद। मैं हूं समी इकबाल। लाहौर में दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। हैवी वेट के 4 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में पाकिस्तान के आसिम जमान का मुकाबला नेदरलैंड्स के वहाब अहमद से हुआ। आसिम जमान के मौकों का वहाब अहमद के पास कोई जवाब न था। जजेस ने आसिम जमान को फातेह करार दिया। खवातीन की बैंटम वेट कैटेगरी में जर्मनी की ज़ायना नसर ने फतह समेटी। 6 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में उन्होंने थाईलैंड की कानुकोवान वेरनपत को हरा दिया। जजेस ने ज़ायना नसर के हक में मुतफ़क़ा फैसला दिया। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में 29 नवंबर तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक हैं। बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग मेले में अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नीदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स एक्शन में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 6 बॉक्सर्स भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शरीक बॉक्सर्स का कहना है कि पाकिस्तान एक बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है। यहाँ आकर खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि खेलों का मकसद लोगों में मोहब्बत पैदा करना है। तफसील जानिए मोहम्मद सुफियान से। दूसरी बैनुल-अक़वामी फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का आगाज जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरिजन में किया गया। बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मेले में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन और नीदरलैंड समेत मुतादिद ममालिक के बॉक्सर्स एक्शन में नजर आएंगे, जिनमें 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी शामिल हैं। इवेंट में कौमी विमेन फाइटर लौरा अकरम भी एक्शन में दिखाई देंगी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी वजीर खेल पंजाब फैसल यूब खोखर ने कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है। तमाम खिलाड़ियों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं। उन्होंने कहा कि तमाम मेहमान जान चुके हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। इवेंट के इनेकाद में पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कौम के लिए आज मुबारकबाद का दिन है कि इस तरह के ग्लोबल मैचेस अब पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा। I congratulate the people of Punjab, I congratulate the people of Pakistan. चैंपियनशिप में शरीक बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स ने कहा है कि पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हो रही है। हम एक अच्छे इवेंट का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान एक बेहतरीन इवेंट की मेजबानी कर रहा है। खेल का मकसद लोगों में मोहब्बत पैदा करना है। Looking forward to some great fights, some great events, and glad to hear that this is not the end, this is the start. So I'm looking forward to it, and I can't. I'm just speaking on behalf of Falcon Promotions. I just want to thank the Pakistan Army, the government of Punjab for backing us, for making this event happen. कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कहा कि चैंपियनशिप में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुझे इससे बहुत प्यार है। दुनिया के हर रंग में पाकिस्तान का परचम बुलंद करना मेरा अज़्म है। I'm very excited and I'm ready and I'm ready to go, and I'll show my skills on 29th of November, and I know I'm going to
do my best and I'm going to beat him. फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे, जो कि 29 नवंबर तक जारी रहेंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।